Hello students. So in the previous class we discussed about electronegativity concept. So electronegativity is over. Now next we have to discuss about uh, factor number or periodic trend number 6, that is metallic and non-metallic nature. Yes, periodic trend number 6, that is metallic and non-metallic nature. Yes. Let us discuss about this, how the metallic nature varies down the group and left to right, and similarly non-metallic nature. So first one we will study about metallic nature. Point number A. Once if you study metallic nature, automatically the second one is opposite to that. Metallic nature. Yes, let us discuss about this metallic nature. First of all, we should know what is the meaning of metal. So what do you mean by metal? So then only we can come to know that how it varies. Metal means any element which has a tendency to, any element which has tendency to lose electron, lose electron. So which means the element which has very high tendency to lose electron, that is called as more reactive metal. So the reactivity here, it depends on the metallic nature depends on ability to lose electron, ability to lose electron. So if any element has a high ability to lose electron, which means it has a more reactive metal. So which this ability to lose electron, which further depends on, which further depends on further depends on IP, ionization potential. If ionization potential is low, let us say if IP is low, which means it has very easy ability to lose electron. जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा मतलब it is the more reactive metal. So which means metallic nature is inversely proportional to ionization potential. अगर किसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं निकलेगा. इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा मतलब क्या है कि वो अच्छी मेटल नहीं है, यानी मोर रिएक्टिव मेटल नहीं है. आप बोल सकते हैं कि दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल. So which means metallic nature is inversely proportional to ionization potential, and ionization potential is inversely proportional to atomic size. Inversely proportional to atomic size. So in that way we can use that metallic nature is directly proportional to atomic size concept. Metallic nature is directly proportional to atomic size. So left to right, what happened to ionization potential? Ionization potential increases. Ionization potential increases means metallic nature decreases. Metallic nature decreases. Understood it? And similarly top to bottom IP, ionization potential decreases. हमने क्या पढ़ा? ionization potential top to bottom decreases, which means metallic nature क्या होगा? Inversely proportional है. So therefore I can say metallic nature increases. So top to bottom and left to right हो गया. अब कौन सा ग्रुप एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा?
कौन सा ग्रुप, यहाँ लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं आप, मेटेलिक नेचर डिक्रीज लिखा है इधर, सो दिख रहे हैं ना आपको, मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, विच मीन्स जो स्टार्टिंग में है दैट इज अ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। और ग्रुप 1 में भी कौन मोर रिएक्टिव मेटल है? सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम तो बात ही नहीं करूंगा। सो मोर रिएक्टिव मेटल कौन होगा? इंक्रीज लिखा है, इट मींस सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पूरा पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव मेटल अगर कोई पूछे तो हमें आंसर क्या देना होगा? सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो इट इज ऑल अबाउट मेटेलिक नेचर। सो मेटेलिक नेचर कभी भी हम बात करते किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? So don't say that metallic nature depends on size. Actually metallic nature depends on tendency to lose electron, which depends on ionization potential. So जिसका IP value कम होगा वो इलेक्ट्रॉन फटाफट रिलीज करेगा, which means it is a more reactive metal. समझ में आ रहा है आपको? Yes, it is a metallic nature point. Now next one, let us talk about non-metallic nature. This is non-metallic nature. Yes. अब non-metal, what do you mean by non-metal? वैसे आप बोल सकते हैं सर मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक नेचर, इसलिए इसके ऑपोजिट लिख सकते हैं, बट थ्योरी ऐसा नहीं पढ़ना है। What do you mean by non-metal? Any element which has tendency to gain electron, tendency to gain electrons, जो इलेक्ट्रॉन फटाफट गेन करेगा वो होगा नॉन मेटल। एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फर्दर डिपेंड्स ऑन it further depends on electron gain enthalpy or electronegativity. Electron gain enthalpy or electronegativity. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? एक्सेप्शनल केस आता है बीच बीच में, इसलिए हम मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। बट जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज नहीं दिया होता है तब हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करना है। अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मींस वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा मतलब क्या है? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सो आई कैन से non-metallic nature is directly proportional to electronegativity. समझ में आ रहा है? जिसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को भी जल्दी गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा मतलब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल हुआ। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस फैक्टर में डिपेंड करेगा? inversely proportional to atomic size, inversely proportional to atomic size. So therefore non-metallic nature is inversely proportional to atomic size. So ये हो गया हमारा नॉन मेटेलिक नेचर के बारे में। अब टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इसके ऑपोजिट में भी आप लिख सकते हैं। अगर आप बोलो सर मेरे को इसका ऑपोजिट समझना तो भी चलेगा, और you can go according to that rule. यहाँ मेटेलिक नेचर क्या लिखा है आपने? टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, तो यहाँ क्या होगा? नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस। एंड लेफ्ट टू राइट इधर लिखा है कि मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, तो यहाँ लिखेंगे नॉन मेटेलिक नेचर increases, non-metallic nature increases. अब क्वेश्चन ये है कौन सा ग्रुप एलिमेंट्स मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा? Which elements act as a more reactive non-metal? यहाँ आपने लिखा है कि नॉन मेटेलिक नेचर
इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो बढ़ के लास्ट में कौन आएगा? ग्रुप 18. But group 18 elements are noble gases. They are neither metals, non-metal nor non-metals. क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता है, लूज भी नहीं करता है, इसलिए उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखना है. तो फिर उसको छोड़ के कौन है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स है. सो आई कैन से ग्रुप 17 एलिमेंट्स, group 17 have more non-metallic nature. They have more non-metallic nature. अब ग्रुप 17 में भी कौन है? ग्रुप 17 में कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यहां आपने क्या लिखा है? डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस लिखा है, यानी ऊपर वाले सबसे ज्यादा होगा. तो देयरफॉर फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस यानी कम होता जाएगा, तो जो ऊपर है वो सबसे मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा. सो दैट इज फ्लोरीन. आप वैसे भी देख सकते हैं विच इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ये क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे. आप क्या सोच सकते हैं? विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? पीरियोडिक टेबल में हमने इसके पहले वाला क्लास में पढ़ा था, फ्लोरीन. तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. सो ऑब्वियसली द फ्लोरीन इज द आंसर. इस तरह से भी आप सोच सकते हैं. सो ये हो गया हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर कॉन्सेप्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो मेक द नोट्स. पहले नोट्स बना दीजिएगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है हम बात करेंगे. यस, नोट डाउन दिस. वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बनाने का है. यस, कंप्लीटेड. अब इसके ऊपर क्वेश्चन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर के ऊपर क्वेश्चन कैसे होता है देखिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है. मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन ही बात करूंगा, बाहर का क्वेश्चंस नहीं. इवन जो 10th क्लास में पढ़ा हो आप अच्छे से, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया ही होगा, बिकॉज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर इज अ 10th क्लास कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन ये है, the reactivity order of group 1 elements, the reactivity order of group 1 elements is that lithium is less reactive than sodium, then potassium, then rubidium, then cesium. यानी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी? increase down the group. So among group 1 elements, reactivity increase down the group. But if you take group 17 elements, fluorine is more reactive than chlorine, then bromine, then iodine, means decreases. Why? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि among group 1 elements, if you come down the group, reactivity increase down the group, but group 17 elements it decrease down the group. दोनों में डिफरेंस क्यों आया है? कि जनरली क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप हो, इंक्रीज होगा तो सब में इंक्रीज, या डिक्रीज होगा तो सब में डिक्रीज. बट ग्रुप 1 में इंक्रीज हो रहा है और ग्रुप 17 में डिक्रीज हो रहा है, क्यों है? इसका आंसर आप खुद सोच सकते हैं. एंड अगर आपने करेक्ट सोचा है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यस यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. तो सोच के बताइए क्या होगा. ग्रुप 1 एलिमेंट्स पहले इधर लिखते हैं. ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. इसमें डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, and group 17 elements of fluorine, chlorine, bromine, iodine, इसमें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है. क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन है. तो क्या है उसका आंसर? यस, इफ यू कैन नोटिस द मेजर डिफरेंस इज ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर मेटल्स,
Group 1 elements are metals and their reactivity depends on ability to lose electron. कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, विच डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन पोटेंशियल. और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा. So which means tendency to lose electron increases. That's why cesium is more reactive metal. समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि ये सभी मेटल्स है और मेटल्स का रिएक्टिविटी किस फैक्टर में डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन which further depends on ionization potential. So down the group ionization potential decreases, which means tendency to lose electron increases. That's why the reactivity is increasing. अब ग्रुप 17 की क्या बात हुआ है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स and their reactivity depends on ability to gain electron, which further depends on electronegativity. It further depends on electronegativity. Down the group electronegativity decreases. अब electronegativity decrease होगा तो tendency to gain electron क्या होगा, वो भी decrease होगा, and that means non-metallic nature decreases. That's why reactivity also decreases. So group 1 और group 17 में खास difference क्यों आया है, क्योंकि ग्रुप 1 सारे के सारे मेटल्स है और ग्रुप 17 नॉन मेटल्स है. इसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होना पड़ता है और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना पड़ता है, इसलिए तो दोनों ऑपोजिट. दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज आल्सो ऑपोजिट. ठीक है, समझ में आया. तो आप इसको प्रॉपरली फेयर अप करना होगा, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो ही इसको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे. जैसे बोर्ड पे लिखा है वैसे एज इट इज नहीं लिखना. जो जो सेंटेंसेस मैंने यूज करा है वो सारे सेंटेंसेस आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा. ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन. नोट डाउन दिस. राइट, सो विद दिस ट्रेंड नंबर 6, that is a metallic and non-metallic nature, we have finished. अब मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर के बाद अब नेक्स्ट एक ही फैक्टर बाकी है, एक ही ट्रेंड बाकी है, वो है वैलेंसी. वैलेंसी के बारे में ज्यादा कुछ खास बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते ही है क्योंकि 10th क्लास में आता ही है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन दैट. वैलेंसी ट्रेंड नंबर 7, पीरियोडिक ट्रेंड नंबर 7. So what is the meaning of valency? Valency means the number of single bonds or a single covalent bond that it can form. So, or I can say the number of electrons gained, the number of electrons gained or lost by an atom to reach nearest noble gas electronic configuration. Noble gas electronic configuration, that is called as valency. So कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है ताकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचे, दैट नंबर इज कॉल्ड एज वैलेंसी. वैलेंसी इज calculated by using this formula. Valency is equal to either number of valency electrons or number of valency electrons minus 8. Either number of valence electrons or number of valence electron minus 8. This formula is used to find the valency. अब हम कोई भी ग्रुप एलिमेंट्स पीरियड लेते हैं. लेट अस टेक पीरियड नंबर 2, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. लेट अस राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Lithium atomic number is 3, that's why like as a 10th class we will write 2, 1.
and it is 2 comma 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 and 2 8. I hope you know what is 2 6, 2 7, 2 8 and all. First indicate K shell electrons and next one indicate L shell electrons, first shell and second shell. अब इसमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स वो है, मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर एलिमेंट है, हमने एलिमेंट लिखा है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और अब लिख रहे हैं हम वैलेंसी। यस, वैलेंसी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? यहाँ पर 2 नोबल गैस है, एक तो नियॉन दिख रहा है और दूसरा है हीलियम। तो हीलियम पहुंचने के लिए लिथियम लूजेस इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज +1। बेरिलियम इसका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, इसलिए +2। बोरॉन +3। कार्बन में it can gain 4 electron or it can lose 4 electrons, so +4 and -4. नाइट्रोजन it is +5 और -3 दोनों होते हैं, +5 कई कई जगह पे होता है, -3 भी होता है। ऑक्सीजन में +6 and -2। फ्लोरीन it is +7 and -1 and नियॉन it is 0 क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट है। बट फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो कभी लूज करेगा ही नहीं, हर बार गेन ही करेगा। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इट शोस ऑक्सीडेशन नंबर -1 ओनली, -1, it cannot show +7. Oxygen it cannot lose 6 electrons because losing of 6 electron require very high energy which is not possible practically. That's why the possible oxidation number for oxygen is -2. So ये है हमारा वैलेंसीज है। तो डाउन लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें, ये पीरियड की बात हो गई ना, दिस इज अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट अगर हम साइन को इग्नोर करें, साइन क्या है? प्लस एंड माइनस। प्लस इंडिकेट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस इंडिकेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइन क्या बताएगा हमें कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है। साइन को अगर आप साइड में रखोगे तो वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5 और 3 2 1 0। इट मींस across the period वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू ग्रुप नंबर 14। ये ग्रुप नंबर 14 है, वहां तक वैलेंसी बढ़ेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा। बट वही अगर मैं एक ग्रुप ले लूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सब में सेम होगा, इसलिए वैलेंसी सेम होगा। सो इट मींस 2 पॉइंट्स down the group valency remains unchanged, as the outer shell electronic configuration of all elements in the group remains same। ठीक है, सो जितने एलिमेंट्स एक ग्रुप में होते हैं उन सब में आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए तो वैलेंसी भी सेम होगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। and even the chemical properties also same. The chemical properties of all elements in a group remains same, right? अब पॉइंट नंबर 2, अब अक्रॉस द पीरियड की अगर हम बात करेंगे, अक्रॉस द पीरियड
ये तो बढ़ रहा है, पहले तो इंक्रीज हो रहा है फिर इसके बाद डिक्रीज हो रहा है. सो across the period valency increases by 1 unit, up to group 14, and then decreases, and as the valency is changing, of course their chemical properties also changes. So this is all about valency. So valency of valency, how it varies in a group and period that is over. So take the notes. With this periodic trends topic is over and very small topic is left, that is nature of oxides. Nature of oxides one topic and another is diagonal relationship. So once if these two topics are over, the chapter is over. Notes. Make the notes. Yes. Yeah, finished. Now next, yes, periodic trends in the beginning you have written. So अब एक बार बैठ के समरी बना दो. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सभी में इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कंफ्यूजन होते रहते हैं, तो आप एक बार बैठ के समरी लिखो. साइज टॉप टू बॉटम क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा. आयोनिक रेडियस, कैटायन और एनियन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा. आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एक लिस्ट बना दो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिस्ट बना दो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लिस्ट बना दो. देन मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर एंड देन वैलेंसी. सो जब ऐसा होगा तो माइंड में क्लैरिटी होगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में. अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी बोरिंग सेशन. चलिए अभी हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. एक्चुअली नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हमारा 11th क्लास के नहीं 12th क्लास का टॉपिक है, बट मैं 12th क्लास वाला पॉइंट्स भी इसी में इंक्लूड कर लूंगा, तो ताकि हम 12th क्लास में अब इसको नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. सो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. सो द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज एसिडिक ऑक्साइड्स. सो पॉइंट नंबर 1, it is all non-metal oxides are acidic in nature. Why they are acidic in nature? Because they produce acid when dissolved in water. जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो एसिड प्रोड्यूस करेगा. देखिए एग्जाम्पल, नॉन मेटल्स, आपको नॉन मेटल ले लो. कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी सिंपल. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड. जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H2O plus CO to reduce H2CO3, which is called carbonic acid. Carbonic acid, which is acidic in nature. ये acidic है इसलिए तो ये भी acidic होगा. SO2, when you dissolve in water, it gives H2SO3, sulfurous acid. ये acidic nature का है इसलिए तो ये भी acidic nature का होगा. या N2O5, when you dissolve it in water, you get HNO3, nitric acid, which means N2O5 is acidic in nature. Or last example, Cl2O7, when dissolved in water, it gives HClO4. It is called perchloric acid. Perchloric acid, name itself, it is acidic in nature. That means Cl2O7 is also acidic in nature. So finally, point number 1, what is that? All non-metal oxides are acidic in nature because, you should write that, because they produce acids when dissolved in water. Yes. Next point. All metal oxides
metal oxides are basic in nature, why? Because when you dissolve them in water they produce bases. जब इसको water में dissolve करोगे तो base produce होगा. Like example, let us take calcium oxide, CaO. Dissolve it in water, you will get CaOH twice, calcium hydroxide. ये बेस है इसलिए तो ये CaO भी बेस नेचर का होता है. आप सब जानते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, 10th क्लास में आया था. एसिड मींस जो H प्लस आयन रिलीज करेगा. ये देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वो H प्लस रिलीज करेगा. H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये भी क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा. ये सभी एसिड्स है. HNO3 एसिड, HClO4 एसिड, ये एसिड है इसलिए तो ये सारे ऑक्साइड भी एसिडिक होंगे. Similarly, non-metal oxide, this is a non-metal oxide. Metal oxide is a basic because when you dissolve it in water, it release OH minus ions or bases. Similarly, magnesium oxide, MgO. MgO, when you dissolve in water, it gives MgOH twice, magnesium hydroxide. Now, next one is some oxides of non-metals are neither acidic and nor basic. They are called as neutral oxides. Some oxides of non-metals show neither acidic nor base nature. वो एसिडिक भी नहीं होगा, बेस भी नहीं होगा. Such oxides are called as yes, neutral oxides. They are called neutral oxides. So example, हम सबसे simple, very common example, water. It is the oxide of hydrogen. And hydrogen is non-metal, but it is neither acidic in nature nor basic in nature. So this is called a neutral oxide, H2O. Then CO, carbon monoxide. It is a neutral in nature. The another one is NO, nitric oxide. Then N2O, nitrous oxide. So these are the very commonly used examples for neutral nature. नेक्स्ट, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करते हैं. दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. सम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल, इट कैन बी बोथ. सम ऑक्साइड्स exhibit metal and exhibit acidic and basic nature. Acidic and base nature. इंपॉर्टेंटली देखो, यहां तक सब लोग सुना होगा, 10th क्लास में भी आता है, बट आगे के लाइन है ना, वो मेन लाइन है. सम ऑक्साइड्स एग्जिबिट एसिडिक और बेस नेचर when react with base or acid respectively. Yes, बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक नेचर शो करेगा और एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेस नेचर शो करेगा. such oxides are called as amphoteric oxides. They are called as amphoteric oxides. Yes, understood it? So example, we have a list of those. अभी फिलहाल मैं 2-3 ही लिखूंगा, बाद में हम टेक्स्ट बुक देख के लिखेंगे. Al2O3 एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. देन जिंक ऑक्साइड Al2O3, then ZnO, then PbO2, then AS2O3 etc. ये जितना मेरे को याद है मैंने उतना लिख दिया है,
बाकी हम देखेंगे तो पूछते हैं। एंड डोंट टेक एनी पॉइंट लाइटली। सो कुछ लोगों को लगता है कि सर 2-3 एग्जाम्पल याद रख के चलो बाकी ईटीसी लिख देंगे तो चलेगा, बट एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था, 15 या 20 कंपाउंड दिया है, पूछा है कि इनमें से कितने कंपाउंड्स एसिडिक ऑक्साइड्स है या इनमें से कितने कंपाउंड्स न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। तो ऐसा क्वेश्चंस में आपको सब आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई डोंट टेक एनी पॉइंट लाइटली। कोई भी पॉइंट इग्नोर नहीं कर सकते आप, लाइट मोड में नहीं ले सकते। सो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। जितने एग्जांपल्स मेरे को याद है उतना मैंने लिख दिया, बाकी आप टेक्स्ट बुक में ढूंढ के लिख सकते हैं। तो सर इसमें प्रूफ कैसे करेंगे? Al2O3 Al2O3 react with HCl, HCl से रिएक्शन होगा तो इट गिव्स AlCl3 प्लस H2O। सो बैलेंसिंग आप कर दीजिएगा तो इसमें देखेगा HCl का नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। HCl का नेचर एसिड है एंड AlCl3 कौन सा नेचर का होता है? सॉल्ट नेचर का है। तो एसिड किस से रिएक्ट होगा तो सॉल्ट बनेगा? एसिड किस से रिएक्ट होगा तो सॉल्ट बनेगा? ऑब्वियस बात है, बेस से रिएक्ट होगा। तो when acid react with base then only you will get salt, which means in this example Al2O3 is showing acidic nature. Al2O3 is showing base nature. And similarly Al2O3 when react with NaOH it gives NaAlOH 4 times। ये कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाद में आप बैलेंस कर दीजिएगा। एंड इन दिस एग्जाम्पल NaOH इज बेस, NaOH इज बेस एंड Al2O3 इज एसिड। नाउ सो आप देखिएगा इस एग्जाम्पल में Al2O3 is reacting with acid and acting as base. Al2O3 is reacting with base and acting as acid. मतलब एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं, बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब Al2O3 is एम्फोटेरिक इन नेचर। ये है। अब देखो मैंने पहले भी बोला कि कोई भी पॉइंट लाइट नहीं लेना चाहिए। एक बार JW में क्वेश्चन आया था, ZNO react with HCl it gives ZnCl2 plus H2O and ZNO react with NaOH it gives Na2ZnOH 4 times. What is the nature of ZNO in both reactions? ऊपर वाला रिएक्शन में क्या है, नीचे वाला रिएक्शन में क्या है, ये JW में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो JW का प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखो, हमको मालूम पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली देख के, सर यहाँ पर HCl एसिड है तो एसिड से कौन रिएक्ट करेगा? बेस रिएक्ट करेगा। इट मींस इन द फर्स्ट रिएक्शन ZNO is acting as base and here NaOH is base. बेस से कौन रिएक्ट करेगा? एसिड रिएक्ट करेगा, which means in the second example ZNO is acting as base, acid। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस JW में आते हैं। तो JW में कोई भी पॉइंट को लाइट नहीं लेना है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हमें इजीली क्लियर भी कर सकते हैं। आप खाली जो नोटबुक में बता रहा हूं इतना फॉलो करो तो आई एम श्योर कि आपको जो JW में 25 क्वेश्चंस है उसमें 20 क्वेश्चंस नोटबुक में से मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर्स वाले स्टूडेंट से भी पूछो तो वो लोग भी बताएंगे आपको यही चीज, खाली नोटबुक पढ़ो तो इतना हो जाएगा। चलिए नोट्स बना दीजिएगा इसका, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का नोट्स। ओके राइट। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? अब बोला है कि डायगोनल रिलेशन एज वेल एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स एंड डायगोनल रिलेशन। Yes.
टॉपिक देखेगा भी हमारा डायगोनल रिलेशन। यस, अब ये डायगोनल रिलेशन क्या होता है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ पीरियड नंबर 2 में होता है। पहले डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिएगा इसका मीनिंग क्या है। लेट अस राइट पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कौन है? लिथियम, राइट? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कौन है? थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। नेक्स्ट थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड आता है, बट उसके हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो बीच में डी ब्लॉक आ जाता है इसमें। नाउ लिथियम का प्रॉपर्टीज किससे मैच होगा? यहां पर जितने एलिमेंट्स मैंने लिखा है उसमें लिथियम के प्रॉपर्टीज किससे मैच होगा? ऑब्वियसली सोडियम से मैच होगा, बिकॉज lithium and sodium belongs to same group and they have same outer shell electronic configuration. But सरप्राइज ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम का मैग्नीशियम से मैच होता है। कुछ प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल प्रॉपर्टीज। I said some properties of lithium are similar with its diagonal element, that is magnesium. Similarly मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी बेरिलियम का प्रॉपर्टीज किससे मैच होना चाहिए? मैग्नीशियम से, और होगा भी। बट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम मैच विद द properties of aluminium, that is a diagonal element, and this relation is only called as a diagonal relationship. अब diagonal relationship क्यों आता है वो तो मैं समझा दूंगा रीजन के साथ, बट diagonal relationship का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि the first element of each group, ये देखिए हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट it shows some similar properties with the second element of next group, second element of next group or its diagonal element, which is called as diagonal relationship. Yes, so we can say some properties of first element of each group, first element of each group show similarities with those of second element of next group, or I can say diagonal element, or we can say diagonal element. Yes, this relation is called as a diagonal relation. अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी की बात है कि बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज किससे मैच होगा? सिलिकॉन से मैच होगा, दैट इज राइट, बट डायगोनल रिलेशनशिप इट डिसअपियर्स आफ्टर कार्बन। कार्बन भी शो नहीं करता है, कार्बन के बाद कुछ प्रॉपर्टी से वो डिसअपियर होता है, दैट्स व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप आफ्टर दैट वन। बट कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि डायगोनल रिलेशनशिप एंड तक चलेगा, यानी कार्बन की प्रॉपर्टीज फास्फोरस से मैच होगा, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज सल्फर से मैच होगा, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्लोरीन से मैच होगा, ऐसा लिखा है कुछ बुक्स में। एंड यू चेक, आपके पास इंटरनेट है तो आप हमेशा चेक करना चाहिए जहां पर डाउट है। तो जहां तक मेरा नॉलेज है कि ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है सिर्फ 3 एलिमेंट्स आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। कार्बन में नहीं आता है, नाइट्रोजन में नहीं आता है, ना ही ऑक्सीजन में आता है। डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ यहां तक ही होता है, बट स्टिल यू चेक ऑन इंटरनेट, आप गूगल में सर्च करो और मेरे को भी अपडेट कर दो ताकि मेरा नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब रीजन सर व्हाई इज इट सो?
अगर लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच हो रहा है तो उसका रीजन है, क्या रीजन है कि सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम वैलेंसी। बट लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच हो रहा है तो उसका क्या रीजन है? द रीजन इज देयर, द रीजन बिहाइंड डायगोनल रिलेशनशिप इज reason is point number 1, they have a similar charge to radius ratio, that is called as polarizability, इसको बोलते हैं polarizability, similar पोलराइजेबिलिटी। सो मतलब लिथियम में जो चार्ज अपॉन रेडियस, लिथियम का चार्ज अपॉन लिथियम का रेडियस जो होगा वो ही मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन मैग्नीशियम का रेडियस होता है, विच मींस वो उन दोनों का सिमिलर पोलराइजेबल कैपेसिटी है, इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम और मैग्नीशियम का मैच होता है। वन रीजन। सेकेंड रीजन इज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये दो रीजन की वजह से यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप हमें देखते हैं, लिथियम विथ मैग्नीशियम, बेरिलियम विथ एल्यूमिनियम, बोरॉन विथ सिलिकॉन। यू रिमेंबर ओनली 3 पेयर्स, बाकी पेयर्स का ये आता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज सम अदर पीपल्स अजम्पशन कि वो लोग क्या सोचते हैं डायगोनल रिलेशन मतलब पूरा चलेगा, बट पूरा नहीं चलता है, गलत बात है। यहाँ तक ही चलेगा, बोरॉन विथ सिलिकॉन तक ही है, उसके आगे नहीं है। ठीक है, यस, ये हो गया हमारा डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। अब आप बोलेंगे सर कि मेरे को कुछ प्रूफ्स दे दो। आपने बोला है कि लिथियम का कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच होगा, बेरिलियम का कुछ प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच होगा, तो आप मेरे को प्रूफ देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। यस, आई विल गिव सम प्रूफ्स। वैसे ये आपको 11th क्लास के आगे आने वाले चैप्टर्स में आता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, बट हियर आई विल गिव यू सम प्रूफ्स for relation between or diagonal relation between beryllium and aluminium। आप लिथियम मैग्नीशियम का भी लिख सकते हैं, बट मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि ज्यादा एमसीक्यूज में पूछते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। तो क्या क्या प्रूफ्स है? पॉइंट नंबर 1, बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। देखो मैंने एम्फोटेरिक वाले में इसका लिखा ही नहीं है, मैं भूल गया था, तो इसलिए मैंने बोला कि एक्सेट्रा नहीं लिखना, उसमें ऐड करते जाओ अपना लिस्ट में। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मींस इट इज एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर, like as aluminium oxide Al2O3 is amphoteric in nature, is amphoteric। तो देखिए जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, और बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, विच इज सिमिलर विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड बोथ शो एम्फोटेरिक नेचर, मतलब सिमिलरिटी बन गए ना। नेक्स्ट सिमिलरिटी ये है द कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर मोर कोवेलेंट like as compounds of aluminium, यानी एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स मोर कोवेलेंट नेचर का होते हैं और बेरिलियम का कंपाउंड्स भी मोर कोवेलेंट नेचर का होते हैं। नेक्स्ट, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव passive oxide layer on the surface, passive oxide layer on their surface due to the reaction with oxygen in air। ऑक्सीजन की वजह से बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। सो इन दिस वे there are some similarities between beryllium and aluminum which we call it as diagonal relation। और उसी को टेक्स्ट बुक में एनोमलस बिहेवियर करके हेडिंग रखा है, बट एनोमलस बिहेवियर हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे और उसके ऊपर एमसीक्यू भी आएंगे तो 12th में करना, अभी कुछ करने का नहीं है।
So with this, diagonal relation topic is over. Take the notes. Yes. So I hope you have made notes. अब next क्या करना है? अब चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए. नाउ इट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है बिकॉज दे वर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. बट इस चैप्टर में सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट एक को छोड़ के ऑल आर थ्योरी क्वेश्चंस. एंड सभी क्वेश्चंस मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर टच किया हुआ है क्लास में. दैट्स व्हाई इट्स योर ड्यूटी टू मेक नोट्स. एक्सरसाइज क्वेश्चंस का नोट्स आप बना दीजिएगा और उसमें जहां पर डाउट है वो मेरे को पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. राइट. बट द कंडीशन इज नेवर कॉपी फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेस और फ्रॉम योर फ्रेंड्स नोटबुक. मैं बार बार बोलते आता हूं, आप ऐसा काम करोगे तो आपको अपना नॉलेज कभी नहीं बनेगा. जो आपने गलती 10th क्लास में किया है कि फ्रेंड्स की नोटबुक में से होमवर्क कॉपी करना या रेफरेंस बुक में से होमवर्क कॉपी करना या ट्यूशन टीचर से के पास जाके होमवर्क करवा देना, वो जो गलती से आपने 10th में किया है भूल जाओ. अब से नया बिगिनिंग है, नया है, अच्छे से काम करो, ईमानदारी से काम करो. जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर आप लाइव क्लास में पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट राइट विथ एटमोस्ट ऑनेस्टी. राइट. थैंक यू गाइस.